loudest noise. In a world increasingly cultured with grand declarations, social media posts, and hollow promises, we often forget a fundamental truth. The world is not moved by the weight of our words, but by the force of our deeds. Ladies and gentlemen, why do action speaks louder? Because action is the ideal, meets real. You can talk about kindness until your voice fades, but a single silent act of helping speaks with a thunder that echoes across generations. Think of the great figure of history, E.G. Sahab. E.G. Sahab did not wait for government resolution to help the suffering. He picked up the injured his own hands. The right brother didn't just lecture on the possibility of flight. They built wings and took to the sky. Birds are like leaves that blows in the tree. Birds are like leaves that blows in the tree. Birds' actions are roots that grow into the tree. Whose bravery speaks louder than any bullet, but not defined by their vocabulary. They are defined by their resolve. They understood that talking about a mountain doesn't make it smaller, only climbing it does. Why does the world demand action? Ever write it? Because words can be used to hide the truth and action reveal it. You can describe the beauty of the tree for hours, but it is the fruit it bears that provides value. You can write 1,000 points about justice, but it is the one person who stands up against bully who actually changed the world. Thank you for listening. के सबसे पुरअमन कैदी की जुबान बनकर आया हूँ, यानी दरख्त। वो दरख्त जिसे हमने बेदर्दी से काट लिया, वो शायद गिरते वक्त यही कहता है, अब के रुत बदली तो खुशबू का सफर रुक जाएगा। अब के रुत बदली तो खुशबू का सफर रुक जाएगा। शहर सारा धूप की दीवार में दब जाएगा। तुम जिसे काटते हो वो सिर्फ लकड़ी नहीं है। तुम जिसे काटते हो वो सिर्फ लकड़ी नहीं है। ये कटा तो नस्ले आदम का शजर रुक जाएगा। आदि बका अगर दरख्तों को जुबान मिली तो वो आसमान की तरफ देखकर चिल्ला कर कहते, ऐ बारी ताला देख तेरे कशफुल महलूकात को जिसे तूने नजर दी थी, मगर ये इतना नादान निकला कि जिस डाली पर बैठा है इसी को काट रहा है। ये भूल गया है कि जब मैं आखिरी बार कटकर जमीन पर गिरूंगा तो मेरे साथ इसकी सांसों की डोर भी कट जाएगी। मोहसिन हाजी, एक दरख्त हमसे पूछता है कि जब तेरा बच्चा नंगे पांव सड़क पर होता है तो तू मेरी छांव की दुआ मांगता है, लेकिन जब मेरा बच्चा एक नन्हा पौधा तेरे कदमों के तले आता है तो तू इसे मुड़कर भी नहीं देता। अपनी बात इस शेर पर खत्म करूंगा। तपती सड़क पर जब भी तुमने अपना बच्चा पाया, तपती सड़क पर जब भी तुमने अपना बच्चा पाया। But the truth is simple. The world doesn't care about what we say. It cares about what we actually do. And today I'm here to talk about why action speaks louder than words. Words are easy and they are free. Anyone can say that they are a hard work or a good friend. But actions are the real test of who you are. For example, a student doesn't get first position by just talking about studies. They can get it by sitting down and working hard. Similarly, a leader doesn't change the nation with just a speech. They can change it by doing a lot of hard work. A tongue can build a castle high with pillars stretching up the sky, but when the storm begins to roar, only the stones of work endure. Ladies and gentlemen, have you ever thought why do people trust actions more than words? Because they can see actions. You can use words to hide the truth, but your behavior always reveals who you really are. The famous writer Ralph Waldo Emerson said, "What you do speaks so loudly that I cannot hear what you say." In our lives, we often say that we want to help the poor or save the environment, but these are just ideas until we take the first step. If you want to show that you're the good person, don't say it. Show it, show yourself. And if you want to prove your value, don't boast. Show your results. To conclude, I request all of you, let your life be a list of things that you have done, not
I request all of you, let your life be a list of things which you have done, not what you just have said. Stop telling people about your plans and let them see your progress and results. और मेरे मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजूद पर इज़हार ख्याल का मौका मिला है, आज मैं उस मौजूद की ज़ुबानी आपसे गुफ्तगू करूँगी जो सदियों से खामोश खड़े हमारी दुनिया को संभाल रहे हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर हमारे ईद खड़े दरख्त बोल सकते तो इनका पहला सवाल क्या होगा। वो शायद अपनी सखावत और हमारी बेरुखी पर ये शेर पढ़ते, मैं धूप में जलता रहा और तुमको साया दिया, मैं धूप में जलता रहा और तुमको साया दिया, हर भूखे मुसाफिर को मीठा फल खिला दिया, मगर अफसोस जब मेरी उम्र ढलने लगी तो तुमने कुल्हाड़ी निकाली और मुझे गिरा दिया। हज़रात, दरख्त हमें बताते हैं कि वो सिर्फ लकड़ी का तना नहीं है बल्कि एक चलती फिरती बस्ती है। जब हम एक दरख्त गिराते हैं तो हम दरअसल इन मासूम परिंदों का आशियाना उजाड़ते हैं जो हमारी सुबह को अपनी चहचहाहट से हसीन बनाते हैं। उनकी पुकार कुछ यूं होती, मेरी हर एक शाख पे था परिंदों का ठिकाना, मेरी हर एक शाख पे था परिंदों का ठिकाना, सीखा था जहानन ने परिंदों ने उजाना। तुमने मुझे काट कर सिर्फ लकड़ी नहीं पाई, उजाड़ दिया तुमने एक मासूम ज़माना। सदरानी वकार, अगर हम दरख्त की इस खामोश फरियाद को ना समझें तो हमारा मुस्तक़बिल निहायत तारीख होगा। दरख्त हमें आखिरी बार तब्दील करते हुए कहता है, तुमने मुझे काट कर शहर को बसा लिए, तुमने मुझे काट कर शहर को बसा लिए, लेकिन सांस लेने के रास्ते गवा दिए। कल धूप जब बढ़ेगी तो ढूंढो
दरख्तों में कोई वस्ते खुदाबंदी है, इन दरख्तों में कोई वस्ते खुदाबंदी है, छांव देते हुए मजहब नहीं पूछा खुदा ये दरख्त बनाया, मेरी छांव में बैठे थे, मगर वक्त के साथ साथ हमने खत्म करने की कोशिश की। अगर दरख्त बोलते अपनी दास्तानें गम जुलूस सुनाते और बोल उठते, हम जिंदगी हैं तुम मौत के सौदागर हो, हम तुम्हें वो मुकद्दस सांस फराहम करते हैं जिस पर तुम्हारी दिल का इंसान है, मगर तुम हमारी हरियाली को वीरानी में बदल रहे हो। क्या तुमको मालूम नहीं कि हमारी सांसों में तुम्हारी बका है? खामोश खड़े हैं हम, धूप में जल रहे हैं, खामोश खड़े हैं हम, धूप में जल रहे हैं, देते हैं सुकून सबको खुद पिघल कर दी। सदर अगर दरख्त बोलते तो अपनी फरियाद को ज़ेरे बयान निकला हूँ, वो लफ्जों की कैद में नहीं आ सकता। आज मैं इस कायनात के सबसे पुरअमन कैदी की जुबान बनकर आया हूँ, यानी दरख्त, वो दरख्त जिसे हमने बेदर्दी से काट दिया, वो शायद फिरते वक्त यही कहता है, अब के रुत बदली तो खुशबू का सफर रुक जाएगा, अब के रुत बदली तो खुशबू का सफर रुक जाएगा, शहर सारा धूप की दीवार में दब जाएगा, तुम जिसे काटते हो वो सिर्फ लकड़ी नहीं है, तुम जिसे काटते हो वो सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये कटा तो नस्ले आदम का शजर रुक जाएगा। अली वकार, अगर दरख्तों को जुबान मिलती तो वो आसमान की तरफ देखकर चिल्ला कर कहते, ऐ बारी ताला देख तेरे सशगुल महलूकात को जिसे तूने अकल दी थी, मगर ये इतना नादान निकला कि जिस डाली पर बैठा है किसी को काट रहा है, ये भूल गया है कि जब मैं आखिरी बार कटकर जमीन पर गिरूंगा तो मेरे साथ इसकी सांसों की डोर भी कट जाएगी। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, एक दरख्त हमसे पूछता है कि जब तेरा बच्चा नंगे पांव सड़क पर होता है तो तू मेरी छांव की दुआ मांगता है, लेकिन जब मेरा बच्चा एक नन्हा पौधा तेरे कदमों के तले आता है तो तू इसे मुड़कर भी नहीं देखता। अपनी बात शेर पर खत्म करूंगा। तपती सड़क पर जब भी तुमने अपना बच्चा पाया, तपती सड़क पर जब भी तुमने अपना बच्चा पाया। मोहतरम मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल साहिबान, असातिज़ा और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अज्ञान अहमद हूँ। आज मैं जिस मौजू पर तकरीर पेश करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर दरख्त बोल सकते तो क्या कहते। दरख्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ये हमें फल, फूल, साया, लकड़ी और छांव हवा देते हैं। अगर दरख्त बोल सकते तो वो हमसे कहते, ऐ इंसान, हम तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, हम तुम्हारी दिनरात खिदमत करते हैं, हम तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं ताकि तुम जिंदा रह सको, लेकिन तुम हमें काटते जा रहे हो। दरख्त शायद ये भी कहते कि हमें मत काटो, हमें पानी दो, हमारी हिफाजत करो, क्योंकि अगर हम ना रहे तो जमीन बंजर हो जाएगी, मौसम खराब हो जाएंगे, हवा आलूदा हो जाएगी, परिंदे बेघर हो जाएंगे और इंसान बीमार पड़ जाएंगे। हमें ना काटो। चलो अशजार जिधर से निकलो, तुम लगाते चलो अशजार जिधर से निकलो, इसके साए में जो बैठेगा आँख देगा। साथ इजाजत चाहूंगा। जो दरख्तों को बचाएगा वही कल बच पाएगा, जो दरख्तों को बचाएगा वही कल बच पाएगा। ये फितरत का असूल है, जो समझेगा वही जीत जाएगा। तो आए आज हम सब मिलकर ये अहद करते हैं, हम दरख्त लगाएंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि यही हमारी पहचान, हमारा मुस्तकबिल है। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाज़रीन मोहतरम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम।
भाई, हमने कभी तेरा रास्ता नहीं रोका, तो तू क्यों हमें जिंदगी जीने से रोक रहा है? यहाँ एक शेर पेश है। हमने खुद को जलाकर तुम्हें ठंडक दी, हमने खुद को जलाकर तुम्हें ठंडक दी, तुमने काट कर सबको ही मेरा नचला। मेरे दोस्तों, अगर दरख्त बोल सकते तो वो सिर्फ हमसे शिकायत न करते, वो हमें सिखाते नहीं। वो कहते हमने कभी तुमसे कुछ मांगा, बस तुमसे एक वादा करते हैं, हमें जीने दो। और जरा वो मंजर सोचे, दरख्त पर बैठा एक परिंदा और दरख्त कह रहा हो, ए मेहमान, कराया नहीं तो कम से कम एक गाना ही सुना दो। यहाँ हल्की सी मुस्कुराहट। बोल सकते तो क्या कहते? दरख्त सबसे पहले हमसे कहते, हमें बेदर्दी से ना काटो, हम तुम्हारी सांसों के मुहाफिज हैं। वो हमें बताते कि जब एक दरख्तों की जुबान होती तो वो हमें याद दिलाते कि वो हमें लजीज फल और जड़ी बूटियों से बनी अद्वियात फराहम करते हैं। वो मुसाफिरों को तपती धूप में ठंडा साया देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदराई वकार और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा मौजू एक ऐसी तहकीकाती दुनिया है जहाँ खामोश रहने वाली ये सब मखलूक यानी दरख्त जुबान पा जाते। अगर दरख्त बोल सकते तो शायद इनकी पहली आवाज एक दर्द भरी पुकार होती। अगर दरख्तों को जुबान मिल जाए तो इनकी तकरीर एक जज्बाती अपील और एक गहरा सबक होती। आज मैं एक ऐसे तस्वुर को जुबान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ जो बज़ाहिर खामोश है, लेकिन जिसकी आज मैं आपको दरख्त के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अगर दरख्त बोल सकते तो क्या होता? अगर दरख्त बोल सकते तो क्या होता? जरा सोचिए, ये दरख्त हमें साया देते हैं और
मेरा आज का उम्मान है कि अगर जरा बोल सकते तो क्या कहते? है दुआ यहाँ के परिंदों के घर न उड़े, है दुआ यहाँ के परिंदों के घर न उड़े, काटना मत वो शजर जिस पे बसे ना हो जाए। सदरे मोहतरम, तसव्वुर करेंगे अगर स्कूल के शहर में खड़ा हुआ पुराना नीम का पेड़ या आपके घर के बाहर लगा हुआ छोटा सा पौधा बोलने लगे तो वो हमसे क्या कहेगा? वो कोई डांट डपट नहीं करेगा, बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह अपना दुख सुख बांटेगा। वो कहेगा, प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हूँ, मैं तुम्हें ठंडी छांव देता हूँ, मीठे फल खिलाता हूँ, और जब तुम थक गए। जनाब सदर और मुहतरम हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा मौजू है कि अगर दर्द बोल सकते तो क्या कहते। अगर वाकई दर्द बोल सकते तो हम सबसे ये कहते, मैं दरख्त हूँ मुझे ना काटो बेदर्दी के साथ, मैं दरख्त हूँ मुझे ना काटो बेदर्दी के साथ, मैं ही देता हूँ तुम्हें साया हवा और जिंदगी की बहार। मौजूद हाज़रीन महफिल, दरख्त हमेशा हवा देते हैं, गर्मी में ठंडी छाँव और माहौल को खूबसूरत बनाते हैं, मगर अफसोस हम इन्हें काट रहे हैं। अगर बोल सकते तो शायद ये भी कहते, मेरी शाखों पर बसती है तुम्हारी सांसों की बहार, मेरी शाखों पर बसती है तुम्हारी सांसों की बहार, मुझको जिंदा रखो वरना हो जाएगा सब कुछ बेकार। दरख्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ये ज़मीन की खूबसूरती भी है और जिंदगी की जरूरत भी। अगर दरख्त ना हो तो हवा कम हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी और माहौल खराब हो जाएगा। जनाब सर, दरख्त अगर बोलते तो वो कहते, दरख्त सिर्फ एक लकड़ी नहीं है, जिंदगी है। दरख्त एक दुआ है जो आसमान तक जाती है, दरख्त सिर्फ एक दुआ है जो आसमान तक जाती है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा जनाब सर, दरख्त हमें आखिर में यही कहते हैं कि जरा सोचो इस बात को, दोस्त हमारी खामोश हमारी हिफाजत नहीं तुम्हारी हिफाजत है। आगे मैं इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूँगा। दरख्त अगर बोल सकते तो ये राज खुल जाता, दरख्त अगर बोल सकते तो ये राज। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर-ए-आज़म, मौजूद मुंसिफीन कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं नूरैन हूँ और आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ का मौका मिला है वो है अगर दरख्त बोले तो। ज़रा तसव्वुर करें कि अगर स्टेज पर लगा माइक दरख्त का होगा तो अब तक रो, अगर दरख्त बोल सकते तो ये हाल ताज़ियों चमन में तख्त पर जिस दम से गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में एक शोर का गुल था, खुली जब आंख नरगिस की न था जुस्तार कुछ बाकी, पता था बाग मारो यहाँ गुल था यहाँ गुल था। शुक्रिया। कि तेरे कानून में बेजुबान का खून माफ है, वो एक शहीद माँ बन कर कहते, मैंने बच्चे यानी परिंदे पाले थे, तूने मेरी गोद उजाड़ी। सिर्फ एक कुर्सी के लिए बता तेरी अदालत में माँ का दुख किस तरह था। मैं सदियों से खड़ा था अब गिरा जा रहा, हर खिलाड़ी के वार से मैं नदी की तरफ परवाज करता हूँ, खुदा के नाम से इस तकरीर का आगाज करता हूँ। खिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, मोहतरम साथिया-ए-किराम, मेहमान खुसूसी और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको और आपसे एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करना चाहता हूँ।
दिया। जनाब संत अगर दरख्त बोलते तो वो क्या कहते? अगर दरख्त बोलते तो वो कहते कि हमने तुम्हें जिंदगी दी, जमीन को खूबसूरत बनाते रहे, लेकिन इंसान तुमने हमें काट दिया। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझता रहा। जनाब संत अगर दरख्त बोलते तो वो क्या कहते? मेरे साया छीनकर तुम धूप खा रहे हो, मेरी लकड़ी जलाकर तुम खुद को जला रहे हो, मैं कटकर तुम्हारा घर बना रहा, तुम हंसकर मेरा कफन सजा रहे हो। अब मैं गिर रहा हूँ, तुम भी गिरे जा रहे हो, मैं खत्म हो रहा हूँ, तुम मिटे जा रहे हो। अल्लाह ताला फरमाता है वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान, और सितारे और दरख्त सजदा करते हैं। जरा सोचिए, जिस दरख्त का सजदा अल्लाह कबूल कर लेता है और उसे हम कुल्हाड़ी से काट देते हैं, अगर वो बोल सकता तो अल्लाह से हमारी शिकायत करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कयामत कायम हो रही हो और तुम्हारे हाथ में खजूर का पौधा हो तो इसे लगा दो। जनाब सदर अगर दरख्त बोलते तो रो कर कहते, ऐ उम्मते रसूल, तेरे नबी ने तो मुझे कयामत के दिन भी लगाने का हुक्म दिया और तूने तो मुझे जीने के दिन भी काट डाला। हाजिरी के महफिल, दरख्त अगर आखिरी बार बोलते तो सिर्फ यही कहते, मैं गया तुम भी गए। ऐ इंसान सुन ले मेरी सलाह भी, दरख्त कटा तो तेरी सांस रुक रही। इसलिए आज फैसला कर लो साथियों, न जाऊंगा उनसे रोने लगते और उनके आंसू हमारे दिलों को हिला देते। लेकिन दोस्तों, दरख्त बोल नहीं सकते, लेकिन आज उनकी कि उन्हीं की वजह से आज अडियाला के परिंदे बेघर हैं, जमीन बंजर है और पानी का कतरा मैसर नहीं। अगर दरख्त बोल सकते तो हमें बताते कि उनके कटने से सिर्फ लकड़ियां नहीं गिरती, जिंदगियां गिरती हैं, नस्लें गिरती हैं, बल्कि मुस्तकबिल ही गिर जाता है। और वो हमें अपनी कहानी सुनाते तो वो शायद चीख कर हमें बताते कि हम इंसानों ने उनकी जड़ों को काट कर अपनी ही बुनियादें कमजोर कर दी हैं। वो हमें रोते हुए अपनी सिसकियों भरी आवाज में कहते कि हमने उनके साए को बेच दिया, उनके सांस को धुएं में बदल दिया और उनके फलों को जहर में डुबो दिया। वो हमें याद दिलाते जब हम बच्चे थे, उन्हीं की छांवों में खेलते थे, उन्हीं की शाखों पर झूले डालते थे और उन्हीं के फलों से भूख मिटाते थे। वो हमसे कहते कि मेरे आज मेरा मौजूद है बोल सकते तो क्या कहते, सोचिए अगर दफ्तरों को बनने की ताकत मिल जाए तो हमसे क्या कहेंगे? शाही को हमसे कहेंगे, ए इंसान, हम तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, हम तुम्हें ठंडी छांव देते हैं, साफ हवा देते हैं और तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। और वो शाही हमें ये नहीं याद दिलाएंगे कि हम तुम्हारे बगैर की जिंदा रह सकते हैं, लेकिन तुम हमारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। क्या हाल सुनाए दुनिया का, क्या बात बताएं लोगों की, तुम हमें काट दे। अगर वक्त में बोल सकते तो हमें मोहब्बत, सेहत और जिम्मेदारियों का सबक देते। हमें चाहिए कि इनकी कदर करें और इनकी हिफाजत करें। आखिर में यही दरख्त है, जिंदगी है। There is an old saying that the empty vessel makes loudest noise. In a world increasingly cultured with grand declarations, social media posts, and hollow promises, we often forget a fundamental truth. The world is not moved by the weight of our words, but by the force of our deeds. Ladies and gentlemen, why do action speaks louder? Because action is the ideal, means rare. You can talk about kindness until your voice fades. But a single silent act of helping speaks with a thunder that echoes across generations. Think of the great figure of history, E.D. Sahab. E.D. Sahab did not wait for government resolution to help the suffering. He picked up the injured his own hands. The right brother didn't just lecture on the possibility of
सबसे पुरअमन कैदी की जुबान बनकर आया हूँ, यानी दरख्त, वो दरख्त जिसे हमने बेदर्दी से काट लिया, वो शायद गिरते वक्त यही कहता है, अब के रुत बदली तो खुशबू का सफर रुक जाएगा, अब के रुत बदली तो खुशबू का सफर रुक जाएगा, शहर सारा धूप की दीवार में दब जाएगा, तुम जिसे काटते हो वो सिर्फ लकड़ी नहीं है, तुम जिसे काटते हो वो सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये कटा तो नस्ले आदम का शजर रुक जाएगा। आदि वकार अगर दरख्तों को जुबान मिली तो वो आसमान की तरफ देखकर चिल्ला कर कहते, ऐ बारी ताला देख ले कशिफुल महलूकात को जिसे तूने अकल दी थी, मगर ये इतना नादान निकला कि जिस डाली पर बैठा है इसी को काट रहा है, ये भूल गया है कि जब मैं आखिरी बार कल जमीन पर गिरूंगा तो मेरे साथ इसकी सांसों की डोर भी कट जाएगी। मोहतरम हाज़रीन, एक दरख्त हमसे पूछता है कि जब तेरा बच्चा नंगे पांव सड़क पर होता है तो तू मेरी छांव की दुआ मांगता है, लेकिन जब मेरा बच्चा एक नन्हा पौधा तेरे कदमों के तले आता है तो तू इसे मुड़कर भी नहीं देखता। अपनी बात इस शेर पर खत्म करूंगा। तपती सड़क पर जब भी तुमने अपना बच्चा पाया, तपती सड़क पर जब भी तुमने अपना बच्चा पाया। But the truth is simple. The world doesn't care about what we say. It cares about what we actually do. And today I'm here to talk about why actions speak louder than words. Words are easy and they are free. Anyone can say that they are a hard work or a good friend. But actions are the real test of who you are. For example, a student doesn't get first position by just talking about studies. They can get it by sitting down and working hard. Similarly, a leader doesn't change the nation with just a speech. They can change it by doing a lot of hard work. Our tongue can build a castle high with pillars touching up the sky. But when the storm begins to roar, only the stones of work endure. Ladies and gentlemen, have you ever thought why do people trust actions more than words? Because they can see actions. You may use words to hide the truth, but your behavior always reveals who you really are. The famous writer Ralph Waldo Emerson said, "What you do speaks so loudly that I cannot hear what you say." In our lives, we often say that we want to have the poor or safe environment, but these are just ideas until we take the first step. If you want to show that you're the good person, don't say it. Show it, show yourself. And if you want to prove your value, don't boast. Show your results. To conclude, I request all of you, let your life be a list of things that you have done, not what you just have said. Stop telling people
बल्कि एक चलती फिरती बस्ती है। जब हम एक दरख्त गिराते हैं तो हम दरअसल इन मासूम परिंदों का आशियाना उजाड़ते हैं, जो हमारी सुबह को अपनी चहचहाहट से हसीन बनाते हैं। उनकी पुकार कुछ यूं होती, मेरी हर एक शाख पे था परिंदों का ठिकाना, मेरी हर एक शाख पे था परिंदों का ठिकाना, सीखा था जहान ने परिंदों ने उड़ाना। तुमने मुझे काट कर सिर्फ लकड़ी नहीं पाई, उजाड़ दिया तुमने एक मासूम ज़माना। सदरानी वकार, अगर हम दरख्त की इस खामोश फरियाद को ना समझें तो हमारा मुस्तकबिल निहायत तारीफ होगा। दरख्त हमें आखिरी बार तब्दील करते हुए कहता है, तुमने मुझे काट कर शहर को बसा लिए, तुमने मुझे काट कर शहर को बसा लिए, लेकिन सांस लेने के दस्ते गवा दिए। कल धूप जब बढ़ेगी तो ढूंढोगे हमें, फिर सोचोगे क्यों खुद अपने मुहाफिज मिटा दिए। शुक्रिया। आज मुझे जिस मौजू पर इज़ारे बयान करने का मौका मिला है वो एक ऐसी खामोश हकीकत है जिसकी पुकार हम रोज सुनते हैं मगर महसूस नहीं करते। मेरा मौजू है, अगर दर्द बहुत सके तो सारे के सदर सब्र कीजिए। अक्सर इस खामोश मौजू को जुबान में जाती तो ये हमसे किसी लाइन क्या कहती, ये हमें कौन कहते या हमारे मतलब मालूम करते। किसी शायर
आपसे दरख्वास्त है कि बच्चों के साथ हौसला अफजाई करें, इनके लिए तालियां बजाएं थोड़ी सी। और नंबर 1018 और मेरे हमारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक खामोश मखलूक का वकील बनकर आई हूँ। जी हाँ, अगर मुझे ज़बान मिल जाती तो मैं क्या कहती? जनाबे आली, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करती जिन्होंने मुझे पानी दिया और मेरा ख्याल रखा, और मैं उन लोगों से शिकवा भी करती जिन्होंने मुझे पहले से काट दिया। पछताएंगे एक रोज कड़ी धूप पड़ी तो, पछताएंगे एक रोज कड़ी धूप पड़ी तो, जो लोग मोहब्बत का शजर काट रहे हैं। जनाबे आली, मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो आपको ऑक्सीजन देता हूँ। मैं वो खामोशी ना समझो, हम भी जिंदा हैं और दर्द महसूस करते हैं। दरख्त कट गया लेकिन वो रास्ते नासी, दरख्त कट गया लेकिन वो रास्ते नासी, तमाम रात परिंदे जमीन पे बैठे रहे। सदैव विकार अगर दरख्त बोलते तो हमें याद दिलाते, जब गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, जब हवा जहरीली हो जाए, तो मत कहना कि हमने खबरदार नहीं किया था। अपनी आज की तकरीर का इख्तिताम इन अल्फाज से करना चाहूँगा। इन दरख्तों में कोई वस्फ़े खुदाबंदी है, इन दरख्तों में कोई वस्फ़े खुदाबंदी है, छाँव देते हुए मजहब नहीं पूछा। खुदा ये दरख्त बनाया, मेरी छाँव में बैठे थे, मगर वक्त के साथ साथ हमने खत्म करने की कोशिश की। सदैव अगर दरख्त बोलते अपनी दास्ताने गम जुलूस सुनाते और बोल उठते, हम जिंदगी हैं तुम मौत के सौदागर हो, हम तुम्हें वो मुकद्दस सांस फराहम करते हैं जिस पर तुम्हारी दिल का निसार है, मगर तुम हमारी हरियाली को वीरानी में बदल रहे हो। क्या तुमको मालूम नहीं कि हमारी सांसों में तुम्हारी बका है? खामोश खड़े हैं हम, धूप में जल रहे हैं, खामोश खड़े हैं हम, धूप में जल रहे हैं, देते हैं सुकून सबको खुद पिघल कर ही। जनाबे सदर, अगर दरख्त बोलते तो अपनी फरियाद को ज़ेरे बयां निकला हूँ, वो लफ्जों की कैद में नहीं आ सकता। आज मैं इस कायनात के सबसे पुरअमन कैदी की जुबान बनकर आया हूँ, यानी दरख्त, वो दरख्त जिसे हमने बेदर्दी से काट दिया, वो शायद गिरते वक्त यही कहता है, अब के रुत बदली तो खुशबू का सफर रुक जाएगा, अब के रुत बदली तो खुशबू का सफर रुक जाएगा, शहर सारा धूप की दीवार में दब जाएगा। तुम जिसे काटते हो वो सिर्फ लकड़ी नहीं है, तुम जिसे काटते हो वो सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये कटा तो नस्ले आदम का शजर रुक जाएगा। आली वकार, अगर दरख्तों को जुबान मिलती तो वो आसमान की तरफ देखकर चिल्ला कर कहते, ऐ बारी ताला देख तेरे सशगुल महलूकात को जिसे तूने अकल दी थी, मगर ये इतना नादान निकला कि जिस डाली पर बैठा है किसी को काट रहा है, ये भूल गया है कि जब मैं आखिरी बार कटकर जमीन पर गिरूंगा तो मेरे साथ इसकी सांसों की डोर भी कट जाएगी। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, एक दरख्त हमसे पूछता है कि जब तेरा बच्चा नंगे पांव सड़क पर होता है तो तू मेरी छांव की दुआ मांगता है, लेकिन जब मेरा बच्चा एक नन्हा पौधा तेरे कदमों के तले आता है तो तू इसे मुड़कर भी नहीं देखता। अपनी बात शेर पर खत्म करूंगा। तपती सड़क पर जब भी तुमने अपना बच्चा पाया, तपती सड़क पर जब भी तुमने अपना बच्चा पाया। मोहतरम मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल साहिबान, असातिज़ा और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अगियार अहमद पत्तव के पेड़ हूँ। आज मैं जिस मौजू पर तकरीर पेश करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर दरख्त बोल सकते तो क्या कहते। दरख्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ये हमें
तुम लगाते चलो अश्कार जिगर से निकलो, इसके साए में जो बैठेगा आग देगा। साथ इजाजत चाहती हूँ। जो दरख्तों को बचाएगा वही कल बच पाएगा, जो दरख्तों को बचाएगा वही कल बच पाएगा। ये फितरत का असूल है, जो समझेगा वही जीत जाएगा। तो आए आज हम सब मिलकर ये अहद करते हैं, हम दरख्त लगाएंगे, इनकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि यही हमारी पहचान, हमारा मुस्तकबिल है। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाज़रीन मोहतरम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़शाई करने का मौका मिला है वो है अगर दरख्त बोल सकते तो क्या कहते। आगाज़ एक दिल को छू लेने वाले शेर से करता हूँ। यही वो दरख्त है सांसों को चला देते हैं, यही वो दरख्त है सांसों को चला देते हैं, या खामोश रह के भी हमको सदा देते हैं। मोहतरम मुसाफिर, जरा आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, एक खामोश जंगल अचानक बोलने लगे, हर तरफ अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दरख्त बोल सकते तो क्या कहते? शायद सबसे पहले वो हमें रोक कर कहते, ए इंसान जरा ठहर जा, हम वही हैं जो तुम्हें सांस देते हैं और तुम हमें सांस लेने भी नहीं देते। वो शायद हंसते भी और रोते भी, वो कहते कमाल है इंसान, हम तुम्हें फल देते हैं तुम हमें जख्म देते हो, हम तुम्हें साया देते हैं तुम हमें जड़ से ही उखाड़ देते हो। और अगर कोई लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर आता तो दरख्त धीमी सी आवाज में कहता, आहिस्ता चल भाई, हमने कभी तेरा रास्ता नहीं रोका, तो तू क्यों हमें जिंदगी जीने से रोक रहा है। यहाँ एक शेर पेश है, हमने खुद को जलाकर तुम्हें ठंडक दी, हमने खुद को जलाकर तुम्हें ठंडक दी, तुमने काट कर सबको ही मेरा किया। मेरे दोस्तों, अगर दरख्त बोल सकते तो वो सिर्फ हमसे शिकायत न करते, वो हमें सिखाते भी। वो कहते हमने कभी तुमसे कुछ मांगा, बस तुमसे एक वादा करते हैं, हमें जीने दो। और जरा वो मंजर सोचे, दरख्त पर बैठा एक परिंदा और दरख्त कह रहा हो, ए मेहमान कराया नहीं तो कम से कम एक गाना ही सुना दो जहाँ हल्की सी मुस्कुराहट। बोल सकते तो क्या कहते। दरख्त सबसे पहले हमसे कहते, हमें बेदर्दी से ना काटो, हम तुम्हारी सांसों के मुहाफिज हैं। वो हमें बताते कि जब एक दरख्त की जुबान होती तो वो हमें याद दिलाते कि वो हमें लजीज फल और जड़ी बूटियों से बनी अद्वियात फराहम करते हैं। वो मुसाफिरों को तपती धूप में ठंडा साया देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर अली वकाल और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू एक ऐसी तहकीकाती दुनिया है जहाँ खामोश रहने वाली ये सब मखलूक यानी दरख्त जुबान पा जाते। अगर दरख्त बोल सकते तो शायद इनकी पहली आवाज एक दर्द भरी पुकार होती। अगर दरख्तों को जुबान मिल जाए तो इनकी तकदीर एक जज्बाती अपील और एक गहरा सबक होती। आज मैं एक ऐसे तस्वुर को जुबान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ जो बज़ाहिर खामोश है, लेकिन जिसकी आज मैं आपको दरख्त के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अगर दरख्त बोल सकते तो क्या होता, अगर दरख्त बोल सकते तो क्या होता। जरा सोचिए, ये दरख्त हमें साया देते हैं
वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा मौजू है कि अगर दरख्त बोल सकते तो क्या कहते। अगर वाकई दरख्त बोल सकते तो हम सबसे ये कहते, मैं दरख्त हूँ मुझे ना काटो बेदर्दी के साथ, मैं दरख्त हूँ मुझे ना काटो बेदर्दी के साथ, मैं ही देता हूँ तुम्हें साया हवा और जिंदगी की बहार। मौजूद हाज़रीन महफिल, दरख्त हमेशा हवा देते हैं, गर्मी में ठंडी छांव और माहौल को खूबसूरत बनाते हैं, मगर अफसोस हम इन्हें काट रहे हैं। अगर बोल सकते तो शायद ये भी कहते, मेरी शाखों पर बसती है तुम्हारी सांसों की बहार, मेरी शाखों पर बसती है तुम्हारी सांसों की बहार, मुझको जिंदा रखो वरना हो जाएगा सब कुछ बेकार। दरख्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ये ज़मीन की खूबसूरती भी है और जिंदगी की जरूरत भी। अगर दरख्त ना हो तो हवा कम हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी और माहौल खराब हो जाएगा। जनाब सर, दरख्त अगर बोलते तो वो कहते, दरख्त सिर्फ एक लकड़ी नहीं है, जिंदगी है। दरख्त एक दुआ है जो आसमान तक जाती है, दरख्त सिर्फ एक दुआ है जो आसमान तक जाती है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा जनाब सर, दरख्त हमें आखिर में यही कहते हैं कि जरा सोचो इस बात को, दोस्त हमारी खामोश हमारी हिफाजत नहीं तुम्हारी हिफाजत है। आगे मेरे शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूँगा। दरख्त अगर बोल सकते तो ये राज खुल जाता, दरख्त अगर बोल सकते तो ये राज। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर-ए-आज़म, मुअज़्ज़ज़ मुंसिफ़ीन-ए-किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं नूरैन हूँ और आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ का मौका मिला है वो है अगर दरख्त बोलते तो। ज़रा तसव्वुर करें कि अगर स्टेज पर लगा माइक दरख्त का होगा तो अब तक रो पड़ता। अगर दरख्त बोल सकते तो ये हाल ताज़ियों चमन में तख्त पर जिस दम सहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में एक शोर का गुल था। खुली जब आंख नरगिस की न था जुस्तार कुछ बाकी, पता था बाग मारो यहाँ गुल था यहाँ गुल था। शुक्रिया। क्या तेरे कानून में बेजुबान का खून माफ है? वो एक शहीद माँ बन कर कहते, मैंने बच्चे यानी परिंदे पाले थे, तूने मेरी गोद उजाड़ दी। सिर्फ एक कुर्सी के लिए बता तेरी अदालत में माँ का दुख किस तरह था। मैं सदियों से खड़ा था अब गिरा जा रहा, हर खिलाड़ी के वार से मैं नदी की तरफ परवाज करता हूँ, खुदा के नाम से इस तकदीर का आगाज करता हूँ। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, मोहतरम साथिया-ए-किराम, मेहमान खुसूसी और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको आपसे एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करना चाहता हूँ और वो है दरख्त अगर बोलते तो क्या कहते। जनाब सदर, जो आज मैं आपको एक ऐसी खामोशी की तरफ ले जाना चाहता हूँ जो कि हमारे आसपास तो है लेकिन हम उसे सुन नहीं सकते। जनाब सदर, वो है दरख्त। अगर दरख्त बोलते तो शायद हमसे वो सबसे पहले ये सवाल करते कि हम खुद धूप में चलते हैं मगर फिर भी तुम्हें साया देते हैं, लेकिन इंसान ने हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ लिया। जनाब सर, अगर दरख्त बोलते तो वो क्या कहते। अगर दरख्त बोलते तो वो कहते कि हमने तुम्हें जिंदगी दी, जमीन को खूबसूरत बनाते रहे, लेकिन इंसान तुमने हमें काट दिया, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझता रहा। मगर जनाब सर, अगर दरख्त बोलते तो वो क्या कहते। मेरे साया छीन कर तुम धूप खा रहे हो, मेरी लकड़ी जला कर तुम खुद को जला रहे हो, मैं कट कर तुम्हारा घर बना रहा, तुम हंस कर मेरा कफन सजा रहे हो। अब मैं गिर रहा हूँ तुम भी गिरे जा रहे हो, मैं खत्म हो रहा हूँ तुम मिटे जा रहे हो। अल्लाह ताला फरमाता है, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, और सितारे और दरख्त सजदा करते हैं। जरा सोचिए, जिस दरख्त का सजदा अल्लाह कबूल कर लेता है
उनके आंसू हमारे दिलों को हिला देते। लेकिन दोस्तों, दरख्त बोल नहीं सकते, लेकिन आज उनकी कि उन्हीं की वजह से आज अडियाला के परिंदे बेघर हैं, जमीन बंजर है और पानी का कतरा मैसर नहीं। अगर दरख्त बोल सकते तो हमें बताते कि उनके कटने से सिर्फ लकड़ियां नहीं गिरती, जिंदगियां गिरती हैं, नस्लें गिरती हैं, बल्कि मुस्तकबिल ही गिर जाता है। और वो हमें अपनी कहानी सुनाते तो वो शायद चीख चीख कर हमें बताते कि हम इंसानों ने उनकी जड़ों को काट कर अपनी ही बुनियादें कमजोर कर दी हैं। वो हमें रोते हुए अपनी सिसकियों भरी आवाज में कहते कि हमने उनके साए को बेच दिया, उनके सांस को धुएं में बदल दिया और उनके फलों को जहर में डुबो दिया। वो हमें याद दिलाते जब हम बच्चे थे, उन्हीं की छांव में खेलते थे, उन्हीं की शाखों पर झूले डालते थे और उन्हीं के फलों से भूख मिटाते थे। वो हमसे कहते कि मेरे आज मेरा मौजू है दरख्त बोल सकते तो क्या कहते सोचिए। सोचिए अगर दरख्तों को बोलने की ताकत मिल जाए तो वो हमसे क्या कहेंगे? शाही को हमसे कहेंगे, ए इंसान, हम तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, हम तुम्हें ठंडी छांव देते हैं, साफ हवा देते हैं और तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। और हम शायद हमें ये नहीं याद दिलाएंगे कि हम तुम्हारे बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन तुम हमारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। क्या